In next part, we cover about using returning clause. It is improve the performance of returning column value with insert, update, and delete statement. It is insert, update, and delete the statement by using of a returning clause. Eliminate the need for a select statement. That is the work of return clause. Often application need information about the row affected by a SQL operation, for example, to generate a report or to take a subsequent action. The insert, update and delete statement can include returning clause. तो यहाँ पर क्या होता है ना, application need uh, information about the row affected by the SQL operation. Okay. For example, to generate a report or take a subsequent action. तो आपको रिपोर्ट जनरेट करने के लिए और सब्सिक्वेंट एक्शन लेने के लिए रिपोर्ट के बेसिस में हम यूज करेंगे इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट यूजिंग इंक्लूड क्लॉज व्हिच रिटर्न द कॉलम वैल्यू, ये आपको रिटर्न करेगा कॉलम वैल्यू फ्रॉम द अफेक्टेड रो इनटू पीएलएसक्यूएल वेरिएबल. मतलब पीएलएसक्यूएल वेरिएबल में आप डाटा स्टोर करोगे, वहां से डाटा को लेकर आप एसक्यूएल में इंसर्ट करोगे, तो वो सारा इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा. This eliminates the need to select the row after the insert or update or before delete. As a result, fewer network round trips और less server CPU time. तो यहाँ पर क्या होगा ना, अगर हम रिटर्निंग क्लॉज यूज करेंगे तो आपका जो नेटवर्क ट्रैफिक है और जो प्रोसेसिंग टाइमिंग है वो लेस हो जाएगा इधर, एंड इट टेक द लेस सर्वर मेमोरी. ओके, so we'll show the example. Here by creating a procedure, create or replace procedure, update salary. Then at runtime we are passing the employee ID. Okay, then on the basis of employee ID it is retrieve the last name and salary. Then update the employee table, set salary equals to salary into 1.1. Okay, then the ID that I am passing at runtime, that ID salary will update. Okay, now for this I am creating a table. Create table, select from dot employees. Here I am creating a table. Now I am creating a procedure. The procedure is created. Now I call the procedure. As I check the data, select last underscore name, salary, employees, employee underscore ID equals to 108. So 108 record I want to change. Now check that what is the salary. Salary is 12,008. Now
I execute update underscore salary. So here I pass 108. See that? It's showing you Greenberg new salary is 13,208. Previously we get what? 12,000. Now check that your record is updated. Okay. So here we are using a returning clause. Returning last name salary into V name and V salary. So first it is updated the record. So after updating, what are the record? Updated record will come. That is stored again in a variable. Okay. So returning last name into salary into V name into salary. हाँ, तो इसमें क्या मतलब ये रिटर्निंग यूज करने पर आपका बेनिफिट क्या है? तो इसमें बेनिफिट ऐसा है कि अगर आप अपडेट करने के बाद आपको नया रिकॉर्ड देखना है तो आपको फिर से सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है इधर. तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, देन रिट्राइव लास्ट नेम एंड सैलरी इनटू देन वेरिएबल नेम, फिर वो वेरिएबल को लेकर आपको शो करना पड़ता है. लेकिन यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ा. तो जो भी डाटा आप पास कर रहे हो वो डाटा ऑटोमेटिक आपका रिटर्न हो गया, रिटर्न होकर वेरिएबल में स्टोर हो गया. वही वेरिएबल का डाटा आप यहाँ पर शो करके देख लीजिए. एनी डाउट? मुस्कान, अमीरा, राहुल? इसकी इतनी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी रिटर्निंग क्लॉज की? है रिटर्निंग क्लॉज की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी? मतलब सिलेक्ट तो हमारे पास था ऑलरेडी पहले से. आप क्या करते हैं? हाँ, आप जो हाँ, तो आप क्या करते थे ना, यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया डाटा को. डाटा को अपडेट करने के बाद मुझे अभी क्या है, अपडेटेड रिकॉर्ड देखना है. तो अगर मुझे अपडेटेड रिकॉर्ड देखना है, मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? टेबल से डाटा रिट्राइव करना पड़ेगा, मतलब ये सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. ओके, मेरा डाटा चेंज हुआ है कि नहीं, और जो अपडेटेड रिकॉर्ड मुझे जो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इधर ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखूंगा इधर, है कि नहीं? सिलेक्ट लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 108. तो आपको अपडेटेड रिकॉर्ड देखने के लिए ये वाला स्टेटमेंट फिर से लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ जी सर. तो फिर रिट्राइव करके वो वैल्यू को आपको PL/SQL में देखने के लिए वो वैल्यू को फिर आप PL/SQL वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा. इनटू क्लॉज यूज करना पड़ेगा. इनटू सिलेक्ट लास्ट नेम इनटू V अंडरस्कोर लास्ट नेम सैलरी इनटू, तो जो सैलरी का जो वेरिएबल होगा वहां पर स्टोर होगा. फिर वहां पर DBMS आउटपुट करके आपको देखना होगा. तो यहाँ पर ऐसा हुआ क्या, सिलेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ा, आपका एग्जीक्यूट हुआ, जो भी वैल्यू आपका स्टोर हुआ वो रिटर्न कर लिया इधर. V नेम में स्टोर हो गया और V न्यू सैलरी में स्टोर हो गया. तो वो वैल्यू आपको डिस्प्ले कर लिया. यहाँ पर आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है. अगर हम यहाँ पर भी सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं ऑलरेडी सर पहले, अगर रिटर्निंग यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? कहाँ पर सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज किया? जैसे हम पहले यूज करते आ रहे थे और जितने भी पहले प्रोग्राम्स हुए हैं. हाँ, ये बोल रहा है कि आपका एग्जीक्यूशन टाइमिंग और प्रोसेसिंग टाइमिंग यहाँ पर फास्टर होगा. सिलेक्ट लिखने पर भी होगा, हाँ. लेकिन अगर आप रिटर्निंग क्लॉज यूज करोगे देन योर एग्जीक्यूशन टाइमिंग इज फास्टर. तो यही बोल रहा है, देखो, often the application need the information about the row affected by the SQL operation. मतलब जो भी आप SQL ऑपरेशन कर रहे हो, आपका जो इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, आपका चेंजेस हुआ है कि नहीं, आपको देखने के लिए फिर से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए. इंफॉर्मेशन देखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर हम अगर रिटर्न क्लॉज यूज करते हैं, ओके,
तो टू जनरेट ए रिपोर्ट टू टेक ए सब्सिक्वेंट एक्शन, मेरा रिपोर्ट में अपडेट कर दिया, डिलीट कर दिया, तो अपडेट डिलीट हुआ है कि नहीं देखने के लिए मुझे रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मुझे सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर विदाउट यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट वी आर यूजिंग रिटर्निंग क्लॉज। तो जो भी चेंजेस होगा वो डायरेक्टली मुझे वैल्यू रिटर्न करके जो वेरिएबल है PLSQL वेरिएबल में वो स्टोर कर देगा। तो DBMS आउटपुट में विदाउट सिलेक्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर देख पाऊंगा। तो ये देखने पर आपका बेनिफिट क्या हुआ, आपका जो प्रोसेसिंग टाइमिंग है, प्रोसेसिंग टाइमिंग आपका फास्टर हो जाएगा। समझ में है? हाँ जी सर। यस सर। Then using bulk binding, it bind whole the array of value in a single operation rather than using a loop to perform fetch, insert, update and delete operation multiple time. मतलब कोई भी चीज आपको मल्टीपल टाइम आपको इंसर्ट करना है और मल्टीपल टाइम आपको डिलीट करना है, मल्टीपल टाइम आपको अपडेट करना है, तो हम यूज करेंगे क्या, अगर मल्टीपल काम करना है तो सेम स्टेटमेंट को आपको बार बार अगर आपको एग्जीक्यूट करना है देन यू आर यूजिंग ए फॉर लूप। तो विदाउट यूजिंग ए फॉर लूप हियर वी आर यूजिंग बल्क बाइंडिंग, मतलब एक ही साथ सारा चीज को इकट्ठा करके मैं उसको इंसर्ट, अपडेट और डिलीट यहाँ पर कर दूंगा। तो binds all the array of value in a single operation rather than using a loop to perform fetch, insert, update and delete operation in multiple times. Then using bulk binding, Oracle server uses the two engine to run PLSQL blocks and subprogram. The PLSQL runtime engine which run the procedural statement but passes the SQL statement to the SQL engine. First listen, the Oracle server uses the two engine to run the PLSQL block and subprogram. PLSQL block और subprogram को run करने के लिए Oracle server दो engine use करता है। The PLSQL runtime engine which run the procedural statement, जो प्रोसीड्यूरल स्टेटमेंट आपका होगा, तो प्रोसीड्यूरल क्या है, आपका जो प्रोसीड्यूर है, फंक्शन है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए PLSQL रनटाइम इंजन यूज किया जाता है, बट पासेस द SQL स्टेटमेंट टू द SQL इंजन। प्रोसीड्यूर को रन करता है लेकिन प्रोसीड्यूर और फंक्शन के अंदर जो SQL स्टेटमेंट आप लिखते हो, जैसे कि आपका जो सिलेक्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको SQL सर्वर में वो जो सारा स्टेटमेंट है वो SQL सर्वर में पास करता है। The SQL engine which parse and execute the SQL statement and in some cases it return the data to the PLSQL engine. उसके बाद क्या होता है, The SQL engine which parses and execute the SQL statement, तो जो SQL statement है वो SQL engine में चला जाता है, SQL engine उसको पर्जिंग करता है, पर्जिंग मतलब कन्वर्ट करता है, चेकिंग करता है वेदर योर प्रोग्राम और योर क्वेरी इज रिटन करेक्टली और नॉट, उसको पर्ज करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर इन सम केसेस रिटर्न द डेटा टू द PLSQL इंजन। अगर आपको चाहिए वैल्यू को रिटर्न करने के लिए और वैल्यू को शो करने के लिए तो वो PLSQL में इंजन को आपको वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि हम इनटू क्लॉज यूज करते हैं, SQL स्टेटमेंट सिलेक्ट वी नेम सैलरी इनटू एल नेम, सपोज हमने डिफाइन किया एक वेरिएबल, सैलरी के लिए SAL वेरिएबल डिफाइन किया, तो मुझे अगर चाहिए तभी मैं डाटा को रिट्राइव करके SQL वेरिएबल में स्टोर करूंगा और उसको मैं डिस्प्ले करूंगा। ओके, सो इट इज व्हाट ऑप्शनल, बट इट इज नॉट ए कंपल्सरी पार्ट। बट क्या होता है ना, जब आप Oracle सर्वर आप यूज करते हो देन इट इज एग्जीक्यूटेड इन द टू पार्ट। PLSQL जो स्टेटमेंट होता है, PLSQL जो स्टेटमेंट it is executed in the PLSQL engine, and if your PLSQL procedure contains the SQL server or SQL part, that SQL part is going to the Oracle or SQL server engine. SQL server engine में वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद अगर आपको PLSQL में वो वैल्यू चाहिए then that value is stored in your variable.
Clear these 2 points? Rahul, Muskan, Akash. Yes, sir, clear. Akash. During the execution of every SQL statement, it causes a context switch between the two engines. During the execution, every SQL statement causes a context switch between two engines, which result in a performance penalty for excessive amount of SQL processing. This is typical application that have a SQL statement in a loop that uses a value from index collection. Collection include the nested table, varying array, index by table, and host array. See that? During the execution of every SQL statement, when you execute every SQL statement, it causes a context switch between two engines. स्विचिंग होता है कि नहीं, जैसे कि PL/SQL इंजन, PL/SQL का पार्ट एग्जीक्यूट होने के लिए PL/SQL इंजन में जाता है, SQL पार्ट एग्जीक्यूट होने के लिए SQL इंजन को जाता है, which result in a performance penalty for excessive amount of SQL processing. Performance which excessive amount of SQL processing. Sorry, which result the performance penalty for excessive amount of SQL processing. जैसे कि SQL PL/SQL में अगर ज्यादा आपका SQL का डाटा रहता है तो आपका SQL इंजन ज्यादा बिजी रह जाता है. That is a performance penalty. This is a typical application that have SQL statement in a loop that uses the value from index collection. Collection include nested table, varying array, index by table, and host array. This collection include the nested table. Nested table means in a table you can include another table, varying array, okay, index by table, and host array. Performance can be substantially improved by minimizing the number of context switch through the use of bulk binding. ये जो परफॉर्मेंस को आपको कैसे बेटर करना है, ये जो बार बार स्विच होता है तो आपको सारा स्टेटमेंट को एक ही साथ आपको एग्जीक्यूट करना है, तभी जाकर काम होगा. जैसे कि मान लो आपको 5 kg आपको आलू खरीदना है, तो आप क्या करोगे, एक जगह मतलब 5 या 6 kg का एक जो थैली लेकर आप जाओगे, देन यू परचेज ऑल द थिंग एंड पुट इनटू द बैग. अगर मैं 1 kg का बैग लेकर जाऊंगा तो मुझे 5 बार जाना पड़ेगा. एक बार गया, फिर एक बार लाया, एक बार गया, एक बार लाया. So it's saying that you have to create a container at a time, you store all the SQL statement and execute it. So that आपका क्या होगा, परफॉर्मेंस आपका बेटर हो जाएगा. मतलब एक ही SQL स्टेटमेंट में बार बार इंजन को जाएगा, फिर रिटर्न करेगा, फिर इंजन को जाएगा, फिर रिटर्न करेगा. So it is a very time consuming process. So instead of doing that time consuming process, you store that information in a you store all the information in a one bucket, then execute at one time. Okay, तो आपका परफॉर्मेंस यहाँ पर बेटर हो जाएगा. So performance can be substantially improved by minimizing the number of context switches through the use of bulk binding. Bulk binding causes the entire collection to be bound in one call, a context switch to the SQL engine. That is, a bulk binding process passes the entire collection of value back and forth between the two engines in a single context switch. In a single context switch, two engines is working together. Compare with incurring a context switch for which the collection of elements in an iteration of a loop.
the more row affected by the SQL statement, the greater performance gain with the bulk bind. आपका जितना भी SQL statement आपको एग्जीक्यूट करना है, जितना भी डाटा आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आपको एक ही साथ कर देना। जैसे कि क्या होता है, अगर आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट पहले करना पड़ता है, अगर आप एक टेबल में आप कोई भी डाटा को आप इंसर्टिंग करते थे पहले, तो क्या होता था ना, बार बार आपको इंसर्टिंग स्टेटमेंट आपको यूज करना पड़ता था। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो 5 लाइन अगर आपको इंसर्ट करना पड़ता था, तो 5 बार आपको क्या करना पड़ेगा ना, इंसर्टिंग स्टेटमेंट 5 बार आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो मुझे 5 बार वो एसक्यूएल स्टेटमेंट नहीं लिखकर बिगिन और एंड के अंदर मैं 5 लाइन अगर एक ही बार मैं पास कर दूंगा, तो बिगिन एंड एंड को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, एक ही बार मेरा सारा चीज एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द वर्ड usefulness of this bulk binding. Okay, so here you cannot insert, you are not inserting the statement one by one. मुझे एक एक बार करके इंसर्ट नहीं करना है, मुझे एक ही साथ सारा डाटा को लेकर इंसर्ट करना है। Okay, that is a one benefit, or it is a benefit of your bulk binding. Any doubt?